Good morning to all. Madam Principal, Dr. Sattapal, Mrs. Shukshma Aluwalia, Coordinator, IQAC, all colleagues, and dear students. It gives me an immense pleasure to welcome you all to the extension lecture under the Gyan Vardhani Shrinkhala, which is being organized by IQAC, Arya College, Ludhiana. The topic for today's lecture is relevant as environment is in danger. It is pity that man is responsible for polluting the environment and disturbing the ecological balance, and the current situation of COVID-19 is live example. In her lecture, Dr. Rajni will be focusing on global warming and soil health deterioration due to heavy metal toxicity. She will also suggest measures to tackle this problem. Dr. Rajni Sharma is specialized in field of forestry, plant ecology, and physiology. She has 23 years of teaching and research experience with 70 publications in national and international journals. She is also an editor of 5 books and 8 manuals, and has attended many national and international seminars and conferences. I request our worthy principal, Dr. Sattapal, to formally welcome our guest of honor, Dr. Rajni Sharma. Madam Sattapal. धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता जी. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. आर्या कॉलेज लुधियाना द्वारा IQAC के प्रयास से चल रही ज्ञान वर्धनी श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधों की भूमिका विषय पर वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में आई डॉक्टर रजनी शर्मा जी, जो कि प्रोफेसर हैं बॉटनी डिपार्टमेंट, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से, IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सूक्ष्म आलूवालिया जी, आर्या कॉलेज की बॉटनी के हेड प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी, प्रोफेसर कुमुद जी, स्टाफ मेंबर्स और बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के वेबिनार का विषय बहुत ही ज्वलंत विषय है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तुलसी, वट, पीपल, आंवला आदि वृक्षों को देव की संज्ञा दी गई है। वृक्ष मनुष्य परिवार के ही अंग हैं। वे हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं और हमें जीवित रखते हैं। वे हमारे लिए बहुत ही अधिक उपयोगी हैं, जिसका मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन है। अतः हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपने वातावरण को स्वच्छ व सुंदर रखें, पर्यावरण को हरा भरा रखें। आज सभी लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाएं। तो आज इस कड़ी में डॉक्टर रजनी शर्मा जी का आर्य परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है और वो हमें पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधों की भूमिका विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। उनका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्तव्य से हमारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा, इस आशा से अब हम उन्हें सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। Gupta sir, kindly unmute yourself. Good morning everybody. Sorry ma'am, Rajni ma'am, sorry, 1 minute. Thank you, sir. Before I request you to start your lecture, Yes, sir. we are going to present a PPT showing our clean and green college campus. It is a matter of pride for us that management and the principal of Arya College are committed to beautifying the campus. We have developed a botanical garden along with other gardens, a vertical garden, and we regularly keep planting seasonal plants and evergreen trees with active participation of students.
And for that, we have prepared a PPT which I am going to show you. Please. Thank you, ma'am, for watching this. And one more request, ma'am. Please, सभी अपना अपना मोबाइल अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एक फोटो के लिए जो हमने अपने रिकॉर्ड में रखनी है और प्रेस के लिए चाहिए. प्लीज सभी स्टूडेंट्स से भी है, सभी टीचर, सभी स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, so that we can get a good photo. होगी सर. Please. Thank you, ma'am. Thank you. Now I request Dr. Rajin Sharma, please start with your lecture. Thank you very much, sir. Am I audible, sir? Yes, ma'am. Yes, very audible. Thank you very much for giving me this opportunity to speak on this burning topic. That is how the trees or the plants, they can help to ameliorate the deteriorating or degrading environment. I'll be using both English as well as Hindi so that the students, they understand it
better, especially those ones who are not from science stream. I would also thank you, sir, for showing me your beautiful campus, and I would really congratulate the entire team, whosoever is taking action in this to maintain this beautiful college campus, especially principal ma'am and all the teachers who are taking care of it. Now coming directly to my topic, that is the role of plants in cleaning the environment. Now question comes, what are the problems which are faced by our environment that we are to take care of it? क्या इतनी problem आ गई है हमारे environment को? So problems को करने से पहले, it is very important for me to tell students what does environment means. Environment का मतलब है all the surrounding, जिसमें भी माहौल में हम रह रहे हैं, जिसमें आपके all living components और non living components दोनों आते हैं. आपकी सराउंडिंग में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स तो होंगे, आपके हवा, पानी, ये आपकी मिट्टी, ये सारे आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं. और लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स, विच इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लाइफ है. तो हमारा जो प्लेनेट है, दिस इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग लाइफ ऑन इट, क्योंकि इसका एनवायरमेंट इज वेरी presence of this environment which can sustain or sustain life on it. Otherwise, बाकी planets में we don't know whether there is a life there or not. But our planet is a hospitable planet because it holds the life on it. और ये life इन्हीं components की वजह से है कि जो हमारे पास air है, हमारे पास water है, air to breathe, water to drink, and soil to produce the food on which we can survive. तो ये सर्वाइवल हमारा इन्हीं वजह से है कि हमारे लिविंग कंपोनेंट्स जो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, और इन दोनों की इंटरेक्शन से क्या होता है, हमारा जो सर्वाइवल है दैट इज पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट. बट द थिंग इज दैट प्रेजेंट डे सिचुएशन इज सच कि वी हैव डिटीरियोरेटेड और डिग्रेडेड. फॉर दिस डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. उसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है. अदरवाइज इफ यू लुक एट द पास्ट, हम अपने पास्ट में देखें तो हमारा एनवायरनमेंट वाज सो हेल्दी दैट वी हैड मिनिमम प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स. ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी नहीं, अस्थमा वगैरह कुछ भी ऐसी नहीं थी, कैंसर वगैरह देयर वाज नो. ये मस्कीटोस, ये डेंगू एंड ऑल, ये क्या है, ये इसी वजह से है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ डिग्रेडेड ऐसी चेंजेस आ गई हैं जिसकी वजह से हमारी नई नई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं. और हमारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारा सर्वाइवल दैट इज डे बाय डे इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट. तो ये डिग्रेडेशन जो है उसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि रिस्पॉन्सिबल भी ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ, ही इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच अ सिचुएशंस. और ये सिचुएशन कैसी है, ये सिचुएशन क्यों आई? ये सिचुएशन आई कि हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जो बैलेंस था उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया. और उस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे को ये जो प्रॉब्लम्स है, हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या और प्रॉब्लम्स हैं, प्लांट्स की प्रॉब्लम्स हैं, एनिमल्स की प्रॉब्लम्स आई, वो इसी वजह से आई कि वी हैव डिस्टर्ब्ड दिस बैलेंस of ecological balance which was present between the environment and our living component. अब ये रीजन भी मैंने बोला ह्यूमन बीइंग्स है, तो ह्यूमन बीइंग्स की फर्स्ट कॉल जो है दैट इज द पॉपुलेशन. हमारी पॉपुलेशन जो है वो हमारा जो लैंड एरिया है, हमारे पूरे प्लेनेट पर जो लैंड एरिया है उसके वो तो बढ़ेगा नहीं, अब वो तो परमानेंट है कि उतना ही रहेगा. बट हमारा पॉपुलेशन प्रेशर इतना ज्यादा है और जिसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर आया. और ये जो एयर, वाटर, सॉइल, व्हाट आर दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर गिवन बाय प्रोवाइडेड टू अस बाय गॉड. इसमें हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो हमें पहले ही हेल्दी मिले थे. पर हमने क्या किया, हमने अपनी पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से जो हमारी एक्टिविटीज आई, जैसे हमारी अर्बनाइजेशन आई, रहने के लिए घर चाहिए था, अर्बन एरियाज डेवलप हुए, फिर हमने इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए, वी अंडरटुक सो मेनी ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से व्हाट वी डिड वाज वी अल्टीमेटली पोल्यूटेड आवर एनवायरनमेंट. हमने अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया.
क्योंकि हमारे पास जो जगह थी, हमारे पास जो एरिया विच वाज अंडर दी फॉरेस्ट कवर, जो हम जहां पर हमारी ग्रीन बेल्ट थी, फॉरेस्ट था, उसको हमने कट किया, वहां को उसको हमने कन्वर्ट किया या तो एग्रीकल्चरल लैंड में टू प्रोड्यूस मोर फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, या उसको हमने इंडस्ट्री लगाई फॉर एज योर लाइवलीहुड के लिए, या फिर हमने उसको क्या किया, ये जो है हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ये डैम्स बनाए, ये हमने सड़कें बनाई, ये सारा कुछ जो बनाया ये हमने ट्रीज को काट काट के बनाया। और इसको जब हमने काटा, अब खुद ही देख लो कि लुधियाने का क्या हाल है। लुधियाने में अगर आप यहाँ निकलो तो आपको फॉरेस्ट, पहले तो रोड साइड में कितनी चलो वेजिटेशन थी, ट्रीज लगे हुए थे, अब उसको काट काट के हमने 2 लेन को 4 लेन किया, 4 लेन को 6 लेन कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनडाउटेडली हम अपनी डेवलपमेंट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, सेक्रीफाइस नहीं करना, बट वी हैव टू टेक मेजर्स कि हमने साइमल्टेनियसली वी हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन आवर डेवलपमेंट एंड साइमल्टेनियसली आवर एनवायरमेंट हेल्थ आल्सो वी हैव टू चेक इट आउट। उसके लिए हमें ये है कि जितना हम काट रहे हैं उसके लिए हमें स्पेशल लगाने की भी प्रोविजन होनी चाहिए, जो कि है। तो ये जो चीजें हैं, इन एक्टिविटीज की वजह से हमने पोल्यूट क्या कर लिया, अपनी एयर पोल्यूट कर लिया। पोल्यूशन में उसमें एयर में आपके डस्ट पार्टिकल आ गई, स्मोक आ गई, जो डिफरेंट जो आपकी इंडस्ट्री से निकल रही है, आपके पास इतने व्हीकल्स आ गए हैं, व्हीकल से स्मोक अमिट हो रही है। आप दीज डेज, स्पेशली दीज डेज, आप जब पैडी बर्न कर रहे हो तो दैट इज पोल्यूटिंग योर वाटर टू योर पोल्यूटिंग योर एयर टू एन एक्सटेंट की दिल्ली वाले लोग तो रोला यही डालते हैं कि पंजाब हरियाणा पैडी बर्न कर रहा है और हमारी स्मोक आ रही है। तो उसकी वजह से क्या है, लोगों को डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि आपके अस्थमा वगैरह हो रहा है, स्पेशली ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, दे हैव स्टार्टेड वी हैव विटनेसिंग दैट देयर आर सो मेनी ऑफ केसेस व्हिच आर राइजिंग इन द हॉस्पिटल के लोग इसीलिए आ रहे हैं कि सांस नहीं आ रही है। तो ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वी हैव डिटीरियोरेटेड एयर की क्वालिटी। कैसे वो डिक्रीज हुई? जो हेल्दी एयर है उसके जो है इंडेक्स, वो क्या है कि आपके हेल्दी एयर में आपके पार्टिकुलेट पार्टिकल्स ना हो, डस्ट पार्टिकल्स ना हो, आपकी इट शुड बी रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच होनी चाहिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल परमिसिबल लिमिट तक ही होना चाहिए, और ऐसे कुछ भी टॉक्सिन्स ना हो जो परमिसिबल लिमिट से अबव हो। अगर आप उस एयर को ब्रीथ करते हो, then what happens is you maintain your health also, health of your animals, plants or whatever life which is surviving on this planet. बट हमने क्या किया हुआ है, हमने ये जो है प्लांट्स वगैरह कट कर दिए। तो ऑक्सीजन रिच का मतलब है, ऑक्सीजन का अब हम देखें तो सोर्स क्या है, अर्थ पे ऑक्सीजन का सोर्स दैट इज योर प्लांट्स। प्लांट्स ही एक ऐसा सोर्स है जो आपको ऑक्सीजन देता है। अदरवाइज आजकल के कोविड के जमाने में ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, ये हॉस्पिटल में जाके पता चलेगी कि वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर क्या क्या कॉस्ट कर रहे हैं। और हमें क्या, वी हैव गॉट दिस ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो गॉड हैज क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल बैलेंस कि उसने गरीब को भी एयर, अमीर को भी एयर, सभी के लिए all natural resources, especially this air and water, free for all, free to all. So ये जो air है, this oxygen is very very important, और वो producers उसके सिर्फ हमारे plants ही हैं। plants ही आपको photosynthesis के थ्रू उसमें क्या करते हैं, वो जो आपका एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल है उसको वो बैलेंस में रखते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर आवर रेस्पिरेशन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर ये बैलेंस मेंटेन रहेगा, वो हमें ऑक्सीजन देते रहें और हम उतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें, उतनी की कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रियल सोर्स से आ रही है, चाहे वो हमारे रेस्पिरेटरी सोर्स से, जिस सोर्स से भी आ रही है, उतनी की प्रोड्यूस करें, ताकि जो हमारा बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो डिस्टर्ब ना हो, तो बैलेंस ठीक रहेगा। बट हमारी पॉपुलेशन की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से हमने इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया है कि ऑक्सीजन जो है वो अब उसका जो लेवल है, मतलब क्वालिटी है, वो बहुत कम, अब नेचुरली वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। तो ये ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे अगर प्लांट्स हम काट देंगे, ट्रीज काट देंगे, तो ऑक्सीजन का सोर्स नहीं रहेगा, तो हम ब्रीथ क्या करेंगे? एयर में ऑक्सीजन नहीं है तो ब्रीथ क्या करेंगे हम? तो अल्टीमेटली हम अपने आप को खुद ही सफोकेट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर सफोकेटिंग आवरसेल्व्स, हम खुद ही अपने आप को सफोकेट कर रहे हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि जो प्लांट्स हैं दे आर
दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हम उसे अपने जिंदा रहने के लिए, अपनी ऑक्सीजन के लिए हमें उनको प्रोटेक्ट भी करना है और नए भी लगाने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते नहीं है, ये जो हमारे पोल्यूशन है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमारी एमिट हो रही हैं, या स्मोक वगैरह जो भी एमिट हो रही है, तो उसको ये क्या करते हैं, इनके जो प्लांट्स का कैनोपी है, ट्रीज वगैरह की कैनोपी है, वो इसको फिल्टर भी करती है। आपने देखा होगा ट्रीज, जो भी आपके रोड साइड पे ट्रीज लगे हैं, उनके पत्तों पे आप देखो कभी, तो आपने देखना दे आर फुल ऑफ डस्ट। तो दैट मीन्स उन्होंने वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने की वजह से आपकी जो एयर है वो क्लीन होगी, एक तरह की उसकी फिल्टर हो। फिल्ट्रेशन से जो अब आपकी एयर बनेगी वो जो है, दैट मीन्स दे हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन व्हिच मेक्स you healthy, which is good for your health, for the health of life of this planet. तो ये तो था एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब है दूसरे जो हमारा रिसोर्स है जिसके ऊपर भी है डिपेंडेंट, हाईली डिपेंडेंट है, विच इज अ ग्रेट थ्रेट दीज डेज, दैट इज वाटर क्वालिटी। तो वाटर क्वालिटी में क्या है, हमारी वाटर की ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी प्लस हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बोथ ऑफ दीज आर अंडर थ्रेट। आपने देखा होगा बठिंडा एरिया के में आजकल कैंसर दैट इज कमिंग अप लाइक एनीथिंग, इज अ कॉमन, बहुत कॉमन हो गया है। तो वो दिस प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग, आवर एनवायरनमेंट इज पोल्यूटेड। हम हमारा पानी जो है वो जो पी रहे हैं उसमें दैट इज टॉक्सिन्स हैं, उसमें आप जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम द सॉइल दैट इज आल्सो पोल्यूटेड, उसमें भी कुछ परमिसिबल लिमिट से ऊपर आ रहे हैं रेजिड्यूज टॉक्सिक लेवल से। तो वह जब वो चीजें हम कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है उसमें कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशंस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आनी है, एंड दोज प्रॉब्लम्स दे आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस व्हिच आर ऑन राइज दीस डेज। हमारा कितने तो कैंसर हॉस्पिटल्स बिल्ट अप हो गए, जबकि इनकी तो पहले जरूरत ही नहीं थी। तो ये क्यों है, ये इसीलिए है कि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया, हमारा खाना पीना अनपोल्यूट हो गया, और पोल्यूशन के लिए वी आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, वी आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये वाटर की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं, वाटर की क्वालिटी, जैसे मैंने बोला कि अर्बनाइजेशन होती है, अर्बनाइजेशन से अर्बन से आपका म्यूनिसिपल वेस्ट जो आता है, म्यूनिसिपल ये वेस्ट आता है जिसमें से कि वेस्ट वाटर है वो हो गया। फिर आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, स्पेशली इंडस्ट्री वेस्ट में तो जो भी आप ये जो होजरी है आप यूज कर रहे हो, यहाँ डाइंग इंडस्ट्री है, उसके जितना भी इफ्लुएंट है, व्हाट इज दैट, दैट इज फुल ऑफ टॉक्सिन्स, उसमें हैवी मेटल्स हैं, उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय द सॉइल, एंड जहां भी उसको हम फेंकेंगे, उस पानी को जहां भी हम बेचेंगे, अल्टीमेटली आपके इफ्लुएंट को जहां भी आप डिस्चार्ज करोगे तो वो एरिया अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी polluted. A very good example is of Buddha Nala. It is said that when there was no industrial effluent which was thrown into this Buddha Nala was full of life. उसमें इतनी मच्छी की इतनी स्पीशीज थी कि that was it was a worth, it was a rather than आजकल के टाइम में तो बुड्ढा नाला स्टिंक कर रहा है, और उसकी हालत जो है वो हमें we all know it कि बुड्ढा नाला is धब्बा on लुधियाना, but that used to be a full of resource, फिश इतनी थी, क्लीन वाटर था। तो हमने सारा बुड्ढा नाला खराब कर दिया, तो वो पोल्यूशन कहाँ से आई, वो आपका म्यूनिसिपल वेस्ट आया, आपका इंडस्ट्री का वेस्ट आया, सारे इफ्लुएंट्स विदाउट ट्रीटिंग वी यूज्ड टू डिस्चार्ज दैट इनटू द बुड्ढा नाला, एंड अल्टीमेटली वी हैव रीच्ड अ सिचुएशन वेयर द बुड्ढा नाला हैज बिकम लाइफलेस एंड इट इज स्टिंकिंग, वो स्टिंक कर रहा है आज की सिचुएशन में। तो ये हमने वाटर की क्वालिटी डिटीरियोरेट कर दी। उसके बाद ये है कि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। आपको पता है पंजाब में लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, पानी अवेलेबिलिटी आने के टाइम में हमें अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वाटर टेबल इतना डाउन जा चुका है कि आपने ट्यूबवेल्स लगा लिए, आपने इतनी उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दी है पानी की कि हमारा जो रिसोर्स है वो धीरे धीरे नीचे को कम हो रहा है। तो अगर हम ट्रीज लगाएंगे, प्लांट्स लगाते हैं, तो व्हाट डू दे डू, वो आपकी रेन वाटर जितनी भी आती है उसकी आपको रनवे को या उसकी ओवरफ्लो को, वो रन ऑफ को प्रोटेक्ट करके इट हेल्प्स टू परकुलेट, उसको परकुलेशन में हेल्प करता है, आपकी सॉइल में परकुलेट होती है। आजकल के टाइम में हमने देखा कि हमारे जो घर है वो क्या है, वो सारा पक्का, उसमें हमने मार्बल लगा लिए, हमने पक्के कर लिए सारे घर, हमारी छतें पूरी पक्की हैं, आसपास हमारा ऑल वी हैव मेड अ कंक्रीट जंगल,
जंगल बन गया हुआ है पर कंक्रीट का जंगल बना दिया हुआ है अपना सराउंडिंग पे। तो उसमें क्या है, जो रेन वाटर है वो सीधा इट इज रन ऑफ हो जाता है और इट इज नॉट पर्कुलेटिंग इनटू द सॉइल। पहले क्या था, अगर आपकी जमीन में आपकी कच्ची जमीन है तो उसमें पर्कुलेशन थी, उसमें ट्रीज लगे थे, रूट्स की वजह से इनफिल्ट्रेशन होती थी और आपका जो वाटर लेवल था दैट यूज टू बी मेंटेन, वो मेंटेन रहता था, इतनी आपको वाटर की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। पर ये प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी इसी की वजह से आ रही है कि हमने पर्कुलेशन ही नहीं है, हमारा इनफिल्ट्रेशन ही रोक दी हुई है। तो ये जो हमारे ट्रीज लगाते हैं तो ये दिस इज हेल्पिंग अस टू रिजुविनेट आवर एनवायरनमेंट, हमारी वाटर की क्वालिटी को, वाटर की अवेलेबिलिटी को, उसको भी हेल्प करते हैं और साथ साथ में ये हमारी एयर क्वालिटी तो मैंने बता दिया वो भी हेल्प करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने पहले बात की एयर की, वाटर की अवेलेबिलिटी की, तो वाटर की अवेलेबिलिटी के साथ साथ हमें अगर हम ये जो प्लांट्स या ट्रीज लगाते हैं तो ये हमारे ट्रीज जो हैं वो हमारे वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करके हमें उसका लेवल इस लेवल तक ले आते हैं कि एटलीस्ट अगर हम उसको ड्रिंकिंग लेवल पे नहीं ला सकते तो एटलीस्ट हम उसको इरिगेशन के लेवल पे तो ला ही सकते हैं ना। वी कैन सो दैट वी कैन सेव आवर सेव आवर फ्रेश वाटर आप बचाना ड्रिंकिंग के लिए एंड यू यूज इट दैट वाटर बाय अंडर, उसको ट्रीटमेंट करके ट्रीट भी प्लांट्स ही करेंगे, आपको मैं आगे बताऊंगी विच इज कॉल्ड दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड फाइटोरेमेडिएशन। वो कैसे ट्रीट करते हैं वो पूरी मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ, बट बिफोर दैट ये हो गया कि हाँ जो ट्रीज हैं वो आपकी एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और आपकी वाटर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं और वाटर की अवेलेबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। और थर्ड है आपका ये जो है सॉइल विच इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स, ये भी बहुत डिग्रेड होगा विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब सॉइल की डिग्रेडेशन की बात करें तो उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी ग्रीन रेवोल्यूशन की। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे कंट्री में तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड प्रोडक्ट, फूड चाहिए था क्योंकि पॉपुलेशन राइज ग्रो कर रही थी, हमारी खाना हम इंपोर्ट कर रहे थे, वी वर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन इंपोर्टिंग आवर फूड ग्रेन। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था टू ग्रो मोर एंड मोर फूड और उस फूड को ग्रो करने के लिए व्हाट वी डिड वाज वी यूज्ड लॉट ऑफ इनपुट्स। और वो इनपुट्स क्या थी, दोस इनपुट्स वर इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। हमने ये स्प्रे कर करके अपनी फूड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। उसका बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एटलीस्ट वी कुड फीड आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। और ये चीज हमने इस लेवल तक करते गए कि आज ये सिचुएशन पे पहुंच गए हैं हम कि हमारी जो सॉइल की हेल्थ है दैट हैज डिटीरियोरेटेड। डिटीरियोरेशन क्यों हुई? यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, हमने इतना ज्यादा केमिकल यूज कर लिया कि वो केमिकल ने सॉइल की हेल्थ भी डिटीरियोरेट की और साथ साथ में उसने हमारा प्रोड्यूस था उसमें भी अगर हायर लेवल की टॉक्सिन्स रेजिड्यू आ गए हैं तो वो हम कंज्यूम करते हैं तो दैट इज इफेक्टिंग आवर हेल्थ आल्सो। यहाँ तक कि जो पहले डीडीटी वगैरह यूज करते थे दैट डीडीटी उसकी ट्रेसेस दे वर इवन रिपोर्टेड टू बी प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क। जब वो मदर के मिल्क में भी डीडीटी डिटेक्ट हो गया तो डीडीटी वाज बैंड, उसको बैन करना पड़ा। Similarly, there are many insecticides and pesticides which have been banned क्योंकि उनका हमारी सॉइल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट है, उसका हमारी प्लांट एंड एनिमल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट है। एनिमल्स फॉडर कंज्यूम करते हैं तो फॉडर की वजह से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिटीरियोरेट होते हैं और फिर हम उसको करते हैं अल्टीमेटली ये सारा फूड चेन में एंटर करता है। फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो अल्टीमेटली दैट इज कॉस्टिंग अस आवर हेल्थ। तो जो ये सारी चीजें हैं, अगर हमें पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया, जिसमें उसका एयर डिग्रेड हो गया, सॉइल डिग्रेड हो गई, वाटर डिग्रेड हो गया, तो व्हाट वी हैव डन सो फार, तो इसको अवेयरनेस के लिए टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द ग्रोइंग स्पेशली आवर ग्रोइंग यंग जनरेशन स्टूडेंट्स के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इट टुक अ वेरी गुड डिसीजन टू टीच एनवायरमेंटल साइंस टू ऑल द डिसिप्लिन्स। सभी डिसिप्लिन्स के लिए मैंडेटरी हो गया। एनवायरमेंट सिर्फ साइंस वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल साइंस आर्ट्स वाले भी पढ़ते हैं, लॉ वाले भी पढ़ेंगे, ऑल डिसिप्लिन्स मैंडेटरी है कि वो पढ़ेंगे। तो ये क्या था, ये दिस वाज मेड मैंडेटरी सो दैट
to raise the awareness among the students, among the people in the society. सोसाइटी के लिए डिफरेंट कंपेन्स, डिफरेंट मिशंस लॉन्च हुए। मिशंस कौन कौन से, जैसे नेशनल लेवल पे ग्रीनिंग इंडिया मिशन, पंजाब लेवल पे तंदुरुस्त पंजाब। तंदुरुस्त पंजाब का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच इज हरियावल पंजाब। हरियावल पंजाब में का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन, प्लांट्स लगाओ, ट्रीज लगाओ, जहां आपको स्पेस मिलती है आप लगाओ, क्रिएट जंगल्स, रेज प्लांटेशंस वेयरएवर इट इज पॉसिबल। तो ये क्यों है? ये इसी वजह से है कि हम जो बैलेंस विच वी हैव बीन, वी कैन रिस्टोर द बैलेंस, वो बैलेंस जो कि हमने लूज कर दिया है, हमने बिगाड़ दिया है अपनी एक्टिविटीज की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार देखा होगा, इसकी वजह से हमने इवन के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो उसके लिए देयर हैव बीन, आपने हमें लॉज तक बनाने पड़ गए। लॉज हम तभी बनाते हैं जब हम किसी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि अब तो ये बचाना ही बचाना है, तो एनवायरमेंटल लॉ हैज बीन क्रिएटेड, एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैज बीन क्रिएटेड। व्हाट डज दिस डिपेक्ट? This, there are many slogans also, एक रुख सौ सुख, हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है, हर पेड़, हर मेड़ पे पेड़, then हर एक मनुख लावे एक रुख। What does this signify? These are the common slogans which we read while going anywhere. स्कूलों में लगे होते हैं, रास्तों में लगे होते हैं। What does this depict? This depicts the importance of planting trees, plantations. तो ये इतनी ज्यादा हाई लेवल पे है कि अवेयरनेस की जरूरत पड़ गई। वी इवन सेलिब्रेट एनवायरमेंटल डे। हम तो हमारे जैसे नॉर्मल डेज होते हैं, जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं, तो ये हमारे को एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करना पड़ा। एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, क्यों करते हैं? ताकि हम मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स which environment is facing and we can find remedies to ameliorate that. अब अगर बात करें कि ट्रीज हमने काट रहे हैं, किस लेवल, क्या हमारा बैलेंस के लिए क्या चाहिए, कितना होना चाहिए? तो एज पर द फॉरेस्ट पॉलिसी, हमारी जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है हमारी कंट्री का, उसका एटलीस्ट 33% दैट शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। अगर उतना 33%, दैट इज 1/3 ऑफ आवर एरिया, इफ दैट इज अंडर फॉरेस्ट कवर, तो आपको दैट विल बी हेल्पफुल इन कीपिंग द एनवायरमेंट हेल्दी। वो आपके एनवायरनमेंट को हेल्दी करेगा। पर क्या है हमारा एट प्रेजेंट? नहीं, हमारे पास तो 24% एरिया ही है, जबकि 33%, दैट मींस वी आर लैगिंग। हम इतना लैग कर रहे हैं, वी आर नॉट मैचिंग दैट फिगर्स। तो उसके लिए हमें प्लांटेशन और एरिया बढ़ाना पड़ेगा। पर हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हमें उसको खाने के लिए, उसके रहने के लिए, हम उसकी डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ करना कि वी डू नॉट हैव एरिया कि हम उसको इंक्रीज कर सकें। आपने जैसे अभी दिखाया वर्टिकल गार्डनिंग, दैट इज वन ऑफ द मीन्स कि हम अब हॉरिजॉन्टल नहीं एक्सपैंड कर रहे, तो वी आर एक्सपेंडिंग एट द वर्टिकल लेवल। तो ये इस लेवल, ये हमारी कंडीशन है। और हाउसिंग के लिए भी आपने देखा होगा, पहले लोगों के बड़े बड़े फार्म हाउसेज, बड़े बड़े घर होते हैं, एटलीस्ट इंडिविजुअल हाउसेज होते थे, पर अब क्या वर्टिकल ग्रोथ है, वी आर मेकिंग फ्लैट्स, क्योंकि हमें उनको रहने के लिए कुछ तो रहने के लिए वी हैव टू मेक अ प्लेस फॉर लिविंग। तो वो हमारे पास जगह, तो लैंड तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, दैट इज वो तो हमारे लॉक्ड है, इतना ही एरिया है हमारे पास, पर उसको मेंटेन कैसे करना, उसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करना, that has to be done through our policies. तो हमारे पास ये नहीं है। 24% ही बोला। पंजाब की क्या कंडीशन है? पंजाब में तो सिर्फ 7% तक ही हमारा एरिया है प्लांटेशंस के अंडर, और इसको हमने प्लांटेशंस में लगा के कितनी तक बढ़ाना है? एटलीस्ट 15% तक पहुंचाना है। इसलिए हम कह रहे हैं हरियावल पंजाब, ताकि ज्यादा से ज्यादा लगे, और एरिया जहां पर, चाहे वो कहते हैं घर में आपके घर का हो, जो लैंडस्केप के लिए हो, चाहे आपकी फील्ड पे हो, फील्ड की बाउंड्री पे लगाओ, आप अपनी मोटर पे लगाओ, आप हर पेड़ पे, हर मेड़ पे पेड़, द प्राइम मिनिस्टर स्लोगन, कि जहां आपको जगह मिलती है एटलीस्ट यू गो इन फॉर प्लांटिंग ट्रीज, ताकि आपका ये एरिया बढ़े। एरिया बढ़ने से आपकी क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट बढ़े, आपने जो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट बढ़े, ताकि आपका सर्वाइवल पे इम्पैक्ट ना हो, जो कि अल्टीमेटली आ चुका है। तो ये जो सोल्यूशन मैंने बताया कि प्लांटेशन एक ऐसी सोल्यूशन है जो कि हम वी कैन यूज फॉर रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस बिटवीन आवर बोथ कंपोनेंट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लांट्स लगाने से क्या होगा? प्लांट्स लगाने से ये है कि दिस इज इजी वे, कॉस्ट इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है,
चीप है, तो ये तो आपका एनवायरनमेंट जो है वो तो उसने क्लीन करना ही करना है, पर जो बंदा लगाएगा उसको, वो एनवायरनमेंट के लिए नहीं लगाएगा, वो उसको इसलिए लगा रहा है आइदर फॉर ब्यूटिफिकेशन, या फिर वो उसको लगा रहा है उसको कोई उससे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। चलो वो तो अच्छी बात है कि प्रोडक्ट मिल रहे हैं, चाहे वो अपने लालच के लिए लगा रहा है। प्रोडक्ट आपके फ्रूट भी हो सकते हैं, आपके टिम्बर भी हो सकती है, बट ट्रीज जो है उस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको ये सर्विसेज भी दे रहे हैं, आपकी वाटर क्वालिटी, आपकी एयर क्वालिटी, आपका सर्वाइवल को कर रहे हैं। सो दिस इज अ एडेड एडवांटेज कि आप लगा रहे हो अपने इकोनॉमिक रिटर्न्स के लिए, बट एनी हाउ आपके इकोनॉमिक रिटर्न्स के साथ साथ प्लांट्स आपको या ट्रीज आपको आपके एनवायरनमेंट को भी अमेलियोरेट कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। अभी आपने बताया कि आपके कॉलेज में वो पंचवटी है, ऐसे त्रिवेणी भी है जिसमें आप पिप्पल, बोर्ड, नीम ये लगाओ। पंचवटी में आपने तो लगाया हुआ है बेल, अशोका, आंवला, पिप्पल, नीम, ये जो लगे हुए हैं, तो ये हमारे है भी इंडिजिनियस ट्रीज। इंडिजिनियस मींस के जो हमारे अपने लोकल ट्रीज हैं उन्हीं को लगा के हम, क्योंकि लोकल ट्रीज की अडेप्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, उनको इतनी केयर की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो उनके इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस भी कम है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके एनवायरनमेंट को हेल्दी भी रखती हैं, ब्यूटिफिकेशन भी ऐड कर रही हैं, और आपको अगर आप प्लांटेशंस रेज कर रहे हो किसी टिम्बर के लिए या किसी और प्रोडक्ट के लिए, तो आपको इकोनॉमिक रिटर्न्स भी आ रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला था कि अवेलेबिलिटी, वाटर की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, आपकी एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। एयर क्वालिटी में जब मैंने ऑक्सीजन की बात की, तो ये तो बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे को लगती है कभी कभी, कि जब जैसे बच्चा पैदा होता है वो रोता है। व्हाट डज दैट सिग्निफाई? वो क्यों रोता है? वो इसलिए रोता है क्योंकि वो बच्चा अडेप्ट करता है अपने आप को बाहर की सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। रोने से क्या होता है, उसका जो लेवल कार्बन, बाहर की ऑक्सीजन, अब क्या करेंगे, पहले मदर पे डिपेंडेंट था, अब वो इनटेक करता है मदर की ऑक्सीजन, मदर से वो बाहर की ऑक्सीजन लेता है, और जैसे वो ऑक्सीजन लेता है वो उसका सारा जो सिस्टम है दैट बिकम्स ऑटोनोमस, वो सारा खुद ही अपनी उस पे चलने, it becomes independent of mother and becomes independent and starts functioning at its own. तो अगर ऑक्सीजन उस टाइम थोड़ी सी भी उसको ना मिले तो व्हाट हैपन, बच्चा ना रोए, तो दैट इज अ बैड सिग्नल, क्योंकि दैट कैन ब्रिंग, वो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ब्रेन इज अल्टीमेटली कंट्रोलिंग सेंटर, वो कहीं ना कहीं आपके किसी फंक्शन, ऑर्गन की फंक्शनिंग को इफेक्ट करेगा, आपकी अल्टीमेटली हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो दिस सिग्निफाइज कि ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जैसे बच्चा रोकता है वो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स हैं, तो हेल्दी ऑक्सीजन होनी बहुत जरूरी है हमारे। ऐसे ही आजकल हम हेल्थ के लिए क्या करते हैं, योगा क्या करता है, योगा से भी टेक ऑक्सीजन रिच एयर। अगर पोल्यूटेड एयर लेंगे तो पोल्यूटेंट्स जाएंगे, और रेदर देन क्रिएटिंग योर हेल्थ बेनिफिट्स, इट विल हैव अ डिटीरियोरेटिंग और बैड इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। तो ऑक्सीजन रिच, आजकल जो भी अर्बन आपने देखा कॉलोनीज डेवलप हो रही है, उनमें ग्रीन बेल्ट इज कंपल्सरी। वो ग्रीन बेल्ट क्या है, वो दैट टेक केयर ऑफ द एयर क्वालिटी लेवल ऑफ दैट एरिया। सो एयर क्वालिटी मेंटेन करना, वाटर क्वालिटी मेंटेन करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। दिस इज हाउ दिस इज टेकन केयर ऑफ प्लांट्स कर रहे हैं। और जब हम इंडस्ट्री भी लगाते हैं तो हमारा एक आपने सुना होगा टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, कोई भी आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाना है, तो आजकल ये मैंडेटरी हो गया है कि उसको एक स्टेटमेंट, दैट हैज टू फर्निश अ स्टेटमेंट, कि जो आपका इसमें से इफ्लुएंट्स आएंगे, चाहे वो वाटर इफ्लुएंट्स हैं या आपके एयर पॉल्यूटेंट, एयर एमिट होगी, उसमें से एमिशंस होगी, वो एयर की एमिशंस का लेवल या वाटर का, क्या वो आपकी सराउंडिंग को इफेक्ट करेगा, या अगर वो इफेक्ट कर रहा है तो व्हाट प्रिकॉशंस यू आर टेकिंग फॉर दैट, आप क्या प्रिकॉशंस लोगे। अगर आप उस प्रोजेक्ट को जस्टिफाई कर पाते हो कि हम वाटर के लिए ये ट्रीटमेंट करेंगे, प्लांटेशन लगाएंगे, और अपना जो हमारा इफ्लुएंट है हम अपनी प्लांटेशन को उससे रेज करेंगे, या आप स्मोक के लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हो, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती अथॉरिटीज, वो आपका प्रोजेक्ट पास नहीं होता। और अगर आप प्रोजेक्ट लग भी जाता है, इफ इट इज सैंक्शनड आल्सो, देन आल्सो दैट टीम, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो जो टीम है, दोस अथॉरिटी, दे कम एंड मॉनिटर योर प्रोजेक्ट। सो दिस रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस, व्हाट इम्पोर्टेंस एंड अवेयरनेस
या हमें किस लेवल तक करना पड़ रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी करनी पड़ रही है, तो दैट हैज साइमल्टेनियसली शुड बी इन सच अ वे दैट इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इट इज नॉट क्रिएटिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमने लिए हैं, हम लेते हैं। तो अब जो मैं बात करूंगी वो है हमारी सॉइल को हम कैसे रिक्लेमेट करते हैं, या हमारे प्लांट्स जो हैं वो कैसे हेल्प करते हैं सॉइल की रिक्लेमेशन के लिए। फॉर दैट आई विल शो यू अ स्लाइड। वो स्लाइड पे दिखाते हैं कि कैसे कैसे हमारे प्लांट्स इसको आई शेयर माई स्क्रीन विद यू। तो जो प्लांट्स को हम यूज करते हैं फॉर अमिलियोरेटिंग हमारे जो सॉइल में पॉल्यूटेंट्स हैं, स्पेशली हैवी मेटल्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, स्पेशली प्लांट्स को यूज करके, दैट इज कॉल्ड एज फाइटोरेमिडिएशन। फाइटोरेमिडिएशन क्या हो गया? ग्रीन प्लांट्स को यूज करना ताकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में उनको आप या तो रिमूव कर दो या उनको उस स्टेज पे कन्वर्ट कर दो कि वो आपके हार्मफुल की बजाय दे बिकम हार्मलेस। तो ये जो यूज करना ट्रीज को, दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच, स्पेशली हमारी हैवी मेटल कंटेमिनेटेड सॉइल्स में। तो इसमें डिफरेंट फाइटोरेमिडिएशन की टेक्निक्स हैं जिससे कि जिससे वो हैवी मेटल्स को आपके इंक्रीज करती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं इनटू अ हार्मलेस प्रोडक्ट्स। तो लिविंग प्लांट्स क्या हुए? तो एक तरह के ये हमारे नेचुरल मशीन होगी विच इज सोलर ड्रिवन पंप्स। सो लिविंग प्लांट्स जो है वो आपके सोलर ड्रिवन पंप्स हैं जो कि आपकी हैवी मेटल्स को जमीन में से एक्सट्रैक्ट करके उनको कॉन्सेंट्रेट करके कर लेते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं एनवायरमेंट। तो ये जो है देयर आर मेनी स्पीशीज जिनकी जेनेटिक पोटेंशियल है चाहे रिमूव करने की या डिग्रेड करने की या अपने मेटाबॉलिक पाथवे में उनको यूज करने की। सो ये स्पीशीज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो हम मोस्टली यूज करते हैं हैवी मेटल पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए। तो कॉमनली जो पंजाब में प्रॉब्लम है वो है निकल, कैडमियम, जिंक, क्रोमियम। तो ये जो है हमारी पंजाब की प्रॉब्लम्स है जो हैवी मेटल पोल्यूटेड है। तो ये कैसे, क्या सभी प्लांट्स इसको टॉलरेट करते हैं? नहीं, ऑल प्लांट्स, हर प्लांट का अपना एक टॉलरेंस लेवल है। अगर वो उस टॉलरेंस लेवल से ज्यादा टॉक्सिसिटी में ग्रो कर रहे हैं तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स। जो टॉक्सिक सिम्टम्स हैं हमें पता चल जाएगा, जैसे उसकी फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, उसका बायोमास प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। इसके साथ साथ उसकी एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, उसके पिगमेंट्स, ये सारा कुछ, उसकी एक्टिविटीज जो है वो इफेक्ट होंगी और हमें पता चल जाएगा कि दिस प्लांट इज फेसिंग प्रॉब्लम इन सर्वाइविंग दैट अंडर दैट कंडीशंस। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें पता है कि ये कैडमियम के हैं, यूरेनियम के हैं, लेड के हैं। तो वो सिम्टम्स को देख के हम उन प्लांट्स को नहीं यूज करते। पर जो प्लांट्स ये सिम्टम्स ना शो करे, वी से दैट दोज प्लांट्स दे कैन टॉलरेट दोज स्पीशीज, they have got a tolerance for those heavy metals and they can grow easily on that and we must use those plants. तो ये क्या है, ये प्लांट स्पीशी की सिलेक्शन किस पे डिपेंड करेगी? उसकी एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट या डिग्रेड करने की कंटेमिनेंट्स। और उसपे सिर्फ यही नहीं कि वो ये एक्सट्रैक्ट और डिग्रेड कर रहा है, पर वो उसको उन लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस जहां पर आप यूज कर रहे हो उसको अडेप्ट भी कर रहा है और वो हाई बायोमास भी प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स बायोमास हो सकती है वो आपकी फॉर्म ऑफ वुड हो, आपकी किसी भी फॉर्म में हो, उसका रूट स्ट्रक्चर भी डीप होना चाहिए ताकि वो लोअर जोन से भी एक्सट्रैक्ट कर ले, उसकी सॉइल के साथ कंपेटेबिलिटी हो, अच्छी ग्रोथ रेट हो, उसको प्लांट करने में, उसको मेंटेन करने में हमारे हमें ज्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े। पर एक चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ना है प्लांट स्पीशीज यूज करते वक्त, स्पेशली हैवी मेटल्स में, कि हमें वो स्पीशीज नहीं यूज करनी पड़े जो कि हमारे लिए या इनडायरेक्टली हमारे एनिमल्स उसको एज अ फूड यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी अगर आप लगा रहे हो दैट शुड नॉट एंटर योर फूड चेन।
अगर आपकी वो कंटेमिनेंट फूड चेन में एंटर कर गया, चाहे वो डायरेक्ट कंजम्पशन से हो या फिर वो आपकी एनिमल प्रोडक्ट्स की वजह से हो, जैसे एनिमल ने फॉडर खाया, फॉडर वाज रेज्ड ऑन हेवी मेटल सॉइल, तो एनिमल ने फॉडर खाया, एनिमल का मिल्क हो गया, मीट हो गया, जो भी है, उससे अगर हमने कंटेमिनेट, तो अल्टीमेटली प्लांट की ह्यूमन हेल्थ भी सफर करेगी और एनिमल हेल्थ भी सफर करेगी। तो वी शुड सिलेक्ट दोज स्पीशीज जिससे कि हम अवॉइड कर सकें अपनी दिस हैवी मेटल एंट्री इनटू आवर फूड चेन। वो कैसे होगा? वो होगा आप ट्री स्पीशीज ग्रो करो, स्पेशली टिम्बर ट्री स्पीशीज ग्रो करो, जो कि आपको सिर्फ लक्कड़ बना के दे। और वो लक्कड़ आप क्या करोगे? वो लक्कड़ आप हार्वेस्ट करने के बाद हैवी मेटल रेज की हुई वो लकड़, आप उसको फर्नीचर में यूज करो। यू कैन यूज इट फॉर योर कंस्ट्रक्शन पर्पस, यू कैन यूज फॉर योर प्लाई में यूज करो, जहां भी आपकी लकड़ी यूज हो रही है आपको वही उसको यूज करना है, ताकि आप उसको वहां से सॉइल में ग्रो करके आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया प्लांट में, और अल्टीमेटली आपने उसको निकाल दिया सिस्टम से, आपने उसका फर्नीचर बना लिया या कंस्ट्रक्शन पर्पस में लगा लिया, और आपने उसको अपने कंटेमिनेशन से बचा लिया। वाटर के अगर वो पानी से रन ऑफ से पानी में चला जाता तो पानी में उसने पोल्यूशन करनी थी, तो सॉइल में रहता तो सॉइल में पोल्यूशन करनी थी। तो अल्टीमेटली यू हैव सेव्ड योर दीज टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज, वाटर को भी सेव किया आपने, सॉइल को भी सेव किया, और अल्टीमेटली आपने अपनी सॉइल को भी सेव किया, सॉइल से भी आपने इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया और वहां यूज किया जहां पर भी आपको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइटो रेमेडिएशन के डिफरेंट तरीके हैं। ये है फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो स्टेबलाइजेशन, ये क्या है अभी मैं वन बाय वन आई टेल यू। पहला है ये जो है हमारा पहला तरीका है, दैट इज फाइटो एक्सट्रैक्शन। फाइटो एक्सट्रैक्शन में व्हाट अ प्लांट ट्री डज इज कि वो पूरे सॉइल में से आपके जितना भी हैवी मेटल है, वो जो भी है कंटेमिनेंट्स हैं, उनको अपनी रूट्स में आपका रिमूव कर देता है, अपटेक कर लेता है, और उसे कहाँ ले जाता है? हार्वेस्टेबल पार्ट में, चाहे वो लीफ हो चाहे वुड हो, उस पार्ट में ले जाता है। उस पार्ट में जाके उसको वहां एक्यूमुलेट कर लेता है। दैट मीन्स कि उसने जमीन में से लेके अपने आप में एक्यूमुलेट कर लिया। अब आपने देखना है कि उस हार्वेस्ट वाला जो मटीरियल है उसको कहाँ यूज करना है, वो आपकी फूड चेन में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो अदरवाइज नो यूज ऑफ फाइटो रेमेडिएशन। अब यहाँ तो वो सीधा ही ले जाता है, मेटल तो सोल्यूशन में है, वो सीधा ही प्लांट अपटेक कर लेता है हार्वेस्टर प्लांट में, या आप अपनी कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके जैसे चिलेटर एप्लीकेशंस यूज करते हैं, ताकि वो जो मेटल्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी सॉइल सोल्यूशन में बढ़ जाए। सॉइल सोल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो अपटेक बढ़ जाएगी, अपटेक से आप उसको इससे यू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ फाइटो एक्सट्रैक्शन। वो ये होगी आपकी असिस्टेड, जब आपने चिलेटर्स यूज किए, और वो थी आपकी नेचुरल जो खुद ही ट्री आप ले रहा है उसको सॉइल में से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये नेचुरल और असिस्टेड मैंने बता दिया। तो ये ट्रीज डिपेंडिंग अपॉन, ये ट्रीज भी प्लांट्स भी जो है दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सक्लूडर्स, जो कि सॉइल में से सर्वाइव करते हैं हाई लेवल पे, और उनमें क्या है, उसमें से निकालते कम है पर उसको अपनी रूट के आसपास ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके अपने आसपास ही इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं और उसको वहीं पर डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, ताकि वो अपने एरियल पार्ट्स, यानी कि जो उसके अपने बाकी पार्ट्स हैं, ये सारा कुछ रूट्स में ही होता है, रूट जोन में ही होता है, और ऊपर एरियल पार्ट्स जो है वो अनइफेक्टेड रहते हैं। दैट मीन्स आपकी जो हार्वेस्टिंग कर रहे हो आप उसको वहां तक वो पहुंचते ही नहीं। और कुछ प्लांट्स होते हैं वो हाइपर अकोमुलेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको अकोमुलेट करते हैं अबव ग्राउंड पार्ट्स तक भी, और उनको हम हाइपर अकोमुलेटर्स बोलते हैं। जैसे कि ड्राई बायोमास में हमें अगर हम उनका कंटेंट लेवल देखें तो इस लेवल से अगर 100 कैडमियम और सिलीनियम के लिए अगर 100 मिलीग्राम पर केजी हो, तो ये इस लेवल से बढ़ जाए तो हम क्या देते हैं, दिस वैल्यूज अप टू इस लेवल तक, दीज आर वेरी मच हायर, जो कि नॉन एक्यूमुलेटिंग स्पीशीज में नहीं होती। तो ये हाइपर एक्यूमुलेटर्स को यूज करके हम अपना ये जो हैवी मेटल है उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर सॉइल, दिस सॉइल व्हिच हैज बीन कंटामिनेटेड बाय इट। These are some of the examples of the species families
जो हैं जो कि which are यूज जिनके प्लांट स्पीशीज को आप यूज करते हैं हाइपर एक्यूमुलेटर्स। दूसरी फॉर्म जो है फाइटोरेमेडिएशन की, दैट इज फाइटोस्टेबलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है, इसमें आपका जो कंटेमिनेंट्स जो प्रेजेंट है सॉइल में, उनको मूवमेंट ही रोक देते हैं प्लांट। कैसे? उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपनी उसमें रूट जोन में, और ये जो मोबिलिटी है वो कंटेमिनेंट की रिड्यूस हो जाती है, फिक्स हो जाती है इसका मतलब। और स्पेशली फिर क्या होता है, ये अंडरग्राउंड वाटर में की जो है उसमें प्रिवेंट होता है, इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग और लीचिंग डाउन। उसमें मूव करने से हम प्रिवेंट कर लेते हैं और हम अपनी अंडरग्राउंड वाटर को सेव कर लेते हैं फ्रॉम कंटेमिनेशन। तो है एक है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें जो प्लांट्स लगा रहे हो आप, वो आपके कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है और उसके अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज कर लेता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, आप जब डिग्रेड ही कर दिया तो दैट बिकम्स, प्लांट ने अपने उसमें यूज कर लिया और आपकी जो सॉइल है दैट बिकम्स फ्री ऑफ दिस, और इससे आपकी ग्राउंड वाटर और आपकी सॉइल, ये सारी उसकी हेल्थ सेव हो जाती है। Then is phytostimulation. This is also called as rhizodegradation. इसमें आप स्पेशली कंटेमिनेंट्स जो है आप जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हो आप इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी राइजोस्फीयर जोन यानी कि रूट जोन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, और आपके ज्यादातर ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स जो भी हैं वो प्लांट उसको यूज कर लेता है और आपकी सॉइल को फ्री कर देता है इसमें, और हेल्प इसमें लेते हैं हम ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बैक्टीरिया है। देन फाइटोवोलेटाइलाइजेशन। फाइटोवोलेटाइलाइजेशन क्या है, इसमें से प्लांट्स कंटेमिनेंट्स को लेकर सॉइल से उनको वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वोलेटाइल फॉर्म मींस दे कैन बी मूव्ड इनटू द एयर, सीधा वोलेटाइल फॉर्म। इसमें हम ज्यादातर मर्करी सेलेनियम लेते हैं, ये वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्पीशीज जो ज्यादातर काम हुआ जिसपे दैट इज अ पॉपुलर। और ऐसे ही राइजोफिल्ट्रेशन में क्या है, एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर जो है या वेस्ट वाटर है वो क्या करता है, वाटर को फिल्टर कर देता है, और वेस्ट वाटर स्पेशली सरफेस वाटर को, और वेस्ट वाटर जिसमें लो कंटेमिनेंट्स हैं। तो फाइटो एक्सट्रैक्शन ये जो है हमारे ग्राउंड वाटर को एड्रेस करती है रेदर देन सॉइल राइजोफिल्ट्रेशन। तो ये जो देन कम्स फाइटो डिसेलिनाइजेशन। ये ज्यादातर क्या सेलिनेशन होती है जो हमारी सेलाइन सॉइल्स जिसमें ज्यादातर हमारी सेलिनिटी ज्यादा, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स है, वो क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स हैं हमारे हेलोफिटिक प्लांट्स आर दोस प्लांट्स व्हिच आर केपेबल ऑफ टॉलरेटिंग हायर लेवल्स ऑफ दिस सेलिनिटी। वो हम ग्रो करें तो हम उस एरिया को, सॉल्ट अफेक्टेड एरिया को रिक्लेम कर सकते हैं। प्लांट्स लगा के कुछ सालों के लिए वो उसका लेवल उस लेवल पे ले आएंगे कि आप उस सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ नॉर्मल एग्रीकल्चर लैंड, बट दिस इज अ स्लो प्रोसेस। पर आप, दिस इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव। उसमें आपका यू आर नॉट यूजिंग एनी, आप कोई पैसा नहीं लगा रहे हो, आप ट्रीज लगा रहे हो, ट्रीज उसको ये नेचुरली उसको कर रहे हैं, तो आपको उससे क्या मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, आपको लकड़ मिल रही है, आपकी सॉइल रिक्लेमेट हो रही है, तो एडिशनल बेनिफिट्स हैं। आप ट्री को सॉइल रिक्लेमेशन के लिए लगा रहे हो पर आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी दे रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो अब क्वेश्चन कम्स कि अगर फाइटो रेमेडिएशन कितनी फॉर्म्स हैं वो ऐसे करती हैं, तो क्या कितना टाइम लगता है फाइटो रेमेडिएशन? क्या आज हम दरख्त लगाएंगे, क्या वो 5 साल में या 10 साल में रिक्लेमेट कर देगा? तो ये जो टाइम है कितना लगेगा, दैट डिपेंड्स कि हमने कौन सा ट्री यूज किया है, वो कितने नंबर उसके यूज किए हैं पर यूनिट एरिया, हमारी जो वहां की सॉइल है वो कैसी है, जो उसमें केमिकल प्रेजेंट है वो कैसे हैं। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं तो वो जो इफेक्ट करेंगी फाइटो रेमेडिएशन की आपकी प्रोसेस को। तो ये जो है इट इज सेड कि बहुत साल लगते हैं टू क्लीन अप द साइट, पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो साइट जिसपे आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट यू कैन ब्रेक इट अंडर सम कंस्ट्रक्टिव पर्पस। आप उसको किसी फॉर्म में जब प्लांटेशन लगा के आप एडिशनल बेनिफिट्स ले, इकोसिस्टम सर्विसेज ले सकते हो, और साथ साथ में आपकी रिक्लेमेशन भी हो रही है और आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज भी आपको मिलती है। तो अब क्वेश्चन कम्स कि हमने प्लांट्स में इतना कुछ एक्युमुलेट कर लिया हैवी मेटल, अगर हम उसको क्या करें,
उस बायोमास जिसमें हमने वुड में या लीफ में या जिस भी प्लांट को ग्रो करके उसमें एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब व्हाट टू डू विद दैट? अगर उसको वहीं रखते हैं तो फिर दोबारा वो डिकम्पोज होकर सॉइल में चला जाएगा, तो वो तो कोई फायदा ना हुआ। तो व्हाट इज इट, वी शुड रिकवर दैट मेटल। मेनी टेक्नोलॉजीज आर कमिंग कि जो आपके फाइटोरेमिडेटेड एरियाज में आपने जो फाइटोरेमिडी के लिए बायोमास लगाया, जो भी लगाया, उसमें से आप मेटल को रिकवर कर लेते हो। टेक्नोलॉजीज आर कमिंग। तो या फिर आपको लैंडफिल्स में यूज कर लेते हो, या फिर आप उसको एनर्जी में यूज कर लेते हो। तो ये वाले प्लांट्स जो है वो मेटल जो आपने एक्सट्रैक्ट किए हो उनको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ये तो था एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिससे कि हम अपना एयर, वाटर, सॉइल, इनको हम दोबारा से क्लीन कर रहे हैं, यानी कि उसको दोबारा यू आर ब्रिंगिंग इट टू अ लेवल, डिग्रेडेशन से उसको आप डिग्रेडेड को आप उसको रिकवर कर रहे हो। और एक टर्म है विच इज कॉल्ड एज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज सीक्वेस्ट्रेशन? सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि आप जो आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, आजकल ये जो एयर है, हम जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग होगी, उसका जो मेन कारण है दैट इज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एनवायरनमेंट। हमारे जो एयर है उसमें, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना बढ़ गया है कि दैट इज ब्रिंगिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर क्लाइमेट। क्लाइमेट में नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं तो हमारा सारा सिस्टम ही सफर कर रहा है। तो ये क्या क्या चीजें हैं? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन फिर क्या है? उस कार्बन को वहां कैसे रिमूव करें? रिमूविंग दैट कार्बन एंड storing it for a long term, that is called sequestration. That means capturing carbon and storing it in long lived pools. उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, कैप्चर करके, कि वो हमेशा के लिए वहां से एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाए। तो पहले पता होना चाहिए कि ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ कहां से रही है। हमारे डिफरेंट सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि आपकी एग्रीकल्चर भी है, आपके व्हीकल्स भी है, आपकी फॉसिल फ्यूल बर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉसिल फ्यूल बर्निंग व्हिच इज ब्रिंगिंग अबाउट दिस ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का जो हमारा इम्पैक्ट आ रहा है, वो क्या आ रहा है? हमारी ग्लोबल वार्मिंग। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग दैट मीन्स कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है ग्लोब का, दैट इज नियर अबाउट 14 डिग्री, 14 डिग्री तक है हमारा टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर अब बढ़ रहा है। तो ये बढ़ क्यों रहा है? वो दैट इज बिकॉज ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस है, क्या ग्रीन हाउस गैस जो है उसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो ये वार्मथ प्रोड्यूस हो रही है हमारे प्लेनेट के ऊपर, तो क्या ये दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? आई हैव टू से that presence of greenhouse effect on this planet is the responsible for survival. हमारे जो ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, हम जो रह रहे हैं, ये 14 डिग्री टेम्परेचर जो हमारा मेंटेन है, दिस इज बिकॉज ऑफ द हीट विच इज ट्रैप्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड which is present in our air. But now problem which has come is that carbon dioxide level in our air, it has increased to such an extent कि उसने जो ये ट्रैप करनी शुरू की है वो बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होगी। एंड इट इज नॉट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, बट इट इज द इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो क्या होना था? अगर हमारे प्लेनेट पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारा प्लेनेट इट वुड हैव बीन सो कोल्ड, सो कूल, कि हमारी तो यहाँ सर्वाइवल ही नहीं होनी थी। पर सर्वाइवल ही नहीं होनी थी, हमने सुबह धूप आनी थी, रात को वो मिट हो जानी थी, और ठंडा प्लेनेट। तो पर ये क्या करता है, ये ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ब्लैंकेट बना देती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ब्लैंकेट क्या करता है, वो ब्लैंकेट जो है हमारी वार्मथ को एयर से, हमारी ये जो अर्थ सरफेस है उसमें से उसको ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट गर्म रहता है। पर ये जो हमने उस ट्रैप को इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इस लेवल तक बढ़ा दी कि वो इतनी ट्रैपिंग हो गई है कि दैट हैज हैविंग एन इफेक्ट ऑन आवर ग्लोबल टेम्परेचर। तो ये जो पहले 2000, ये दिस ग्राफ इट डिपिक्ट्स हाउ मच लेवल इट हैज इंक्रीज्ड। 2006 में अगर 380 ppm था हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये इंक्रीज हो गया आज तक क्या कहते हैं 405 डिग्री, 405, इवन के 415 2019 का डाटा, कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है।
तो ये तो और नॉर्मल टेम्परेचर देखें जो हमारे अर्थ का है, उन्होंने कहा कि ये 0.8 डिग्री एनुअली राइज हो चुका है, इतने टेम्परेचर, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से। अगर इसी स्टेज पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते रहे और इसकी ना हमने रोका, तो ये तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि अल्टीमेटली दैट विल बी अ ग्रेट थ्रेट। हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सर्वाइवल क्या, हमारे तो ये हालत होगी कि हमारे वाटर जो ग्लेशियर्स हैं हीट की वजह से वो मेल्ट हो जाएंगे, हमारा हमें पानी नहीं मिलेगा। ग्लेशियर्स आर द पीरियड सोर्स ऑफ वाटर, पीरियड सोर्स खत्म हो गया, पीने को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी जाएगा, फ्लडिंग होएगी, एकदम से पानी ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो फ्लड्स आएंगे, आपका जो ओशियंस का लेवल है वो बढ़ जाएगा, ओशियन में पानी का लेवल बढ़ेगा तो आपका जो लैंड एरिया उसको सराउंडिंग है वो दैट विल बी सबमर्ज्ड इन वाटर। और इसके साथ साथ वाटर की एसिडिफिकेशन हो जाएगी, वाटर की जो हमारा ओशियंस हैं या हमारे वाटर सोर्सेज हैं उनकी एसिडिफिकेशन होगी, तो नेचुरली वहां पर जितनी भी आपकी वेजिटेटिव जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो भी है वो सारी इफेक्ट होगी, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो उसमें एक्वेटिक एनिमल हो, एक्वेटिक लाइफ दैट विल बी थ्रेटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हो भी हमारी वजह से रहा है। हम कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन लेवल इतनी बढ़ा दी है। वो मैन मेड सोर्सेज कौन कौन से हैं? वो है हमारी इंडस्ट्री से आ रही है, हम ट्रांसपोर्टेशन से यूज कर रहे हैं, हम लैंड यूज चेंज कर रहे हैं, यानी कि फॉरेस्ट वगैरह को काट के उसको हम ये कंक्रीट में चेंज कर रहे हैं। हमारी सॉइल कल्टीवेशन की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनकी वजह से हमारी एमिशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। अदरवाइज सॉइल इज ऑल्सो अ सोर्स, एक सिंक है जहां पर कि आप कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है। फिर हम बायोमास बर्न कर रहे हैं, फिर हम फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, दीज आर द मेन सोर्स। क्योंकि इंडस्ट्री में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर आप पेट्रोल वगैरह यूज कर रहे हो तो यूज तो आप फॉसिल फ्यूल ही कर रहे हो। नाउ क्वेश्चन कम्स कि अगर हम जो हमारी ये जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम उसी को प्लांट्स उसी को ही ले और उसी को प्लांट्स को हार्वेस्ट करने के बाद अगर हम जला भी देते हैं, तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है वो बैलेंस्ड, वो न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एनवायरनमेंट से ली और बर्निंग के बाद एनवायरनमेंट में दे दी, कुछ ऐड नहीं किया। पर जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, वो हमारे सिस्टम से बाहर है, दे आर लॉक्ड इन द सर्फेस, इन द डीप जोन्स ऑफ आवर अर्थ के बहुत ही नीचे से फॉसिल फ्यूल्स को हम निकालते हैं। वो तो हमारे अर्थ के बजट में नहीं है। वो जब हम वहां से निकाल के उसको बर्न करते हैं यहाँ पर, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो कोल है, यहाँ बर्न करते हैं, तो दैट एड्स अप टू द कार्बन डाइऑक्साइड। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग आर द मेन कॉज फॉर इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अदरवाइज तो यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके यही यूज करके यही इमिट कर दी, तो वो तो हमारा कार्बन न्यूट्रल है। पर ये फॉसिल फ्यूल की बर्निंग ही हमारा कार्बन एमिशन को बढ़ा रही है। तो हमारे नेचुरल सोर्सेज भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के, जैसे हमारे वॉल्केनोज हैं, जंगलों में आग लग गई, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये है हमारे नेचुरल सोर्सेज। तो ये ग्रीन हाउस गैस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम मानते हैं मेन कल्प्रिट फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग, तो इसकी एक ये भी बात है कि ये 100 साल तक स्टेबल रहती है एटमॉस्फेयर में, और इसकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू जो पर ईयर बढ़ रही है वो बहुत हाई लेवल पे बढ़ रही है, दैट इज इट इज इंक्रीजिंग एट 2 ppm पर ईयर। ये डाटा रिकॉर्ड हुआ कि इतनी ज्यादा पर हमारी जो है हम इसकी इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम कार्बन को तो और तरीकों से भी कर सकते हैं, जैसे ओशंस में सिक्वेस्टर कर लें, उसको ओशंस में स्टोर कर लें, पर ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट। और अल्टीमेटली ओशन में अगर स्टोर करते हैं तो ओशन में डीप उनके में करते भी हैं, तो उसका प्रिकॉशन क्या होगा, अगर कल को लीकेज होगी तो क्या होगा। तो वी कैन नॉट यूज दिस टेक्नोलॉजीज क्योंकि दीज आर वेरी वेरी कॉस्ट effective, not cost effective, but they are determines lots of cost. तो हमारे अगर हम ट्रीज लगाते हैं तो क्या है, हमारी कार्बन तो फिर भी सिक्वेस्टर होगी और ये दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव, और साथ साथ में इसके हमें एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ये प्लांटेशंस के साथ हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को हम सिक्वेस्टर कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रॉ मटेरियल फॉर ऑल द प्लांट्स एज फॉर फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एक रॉ मटेरियल है जिससे वो यूज करते हैं। तो यही वो मैं बात की कि विच आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेयर व्हाट विच आर द सिंक्स।
So plants, they are the good sinks for carbon dioxide. तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल में फिक्स करते हैं तो हमारी यील्ड भी बढ़ती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ती है। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने से हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ जो है हमारे प्लांट उसकी वो इम्प्रूव होती है। हमारी हमारा जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो एनहांस होती है। डिकम्पोजिशन होने से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें लॉक्ड अप वो जल्दी से डिग्रेड होने से दे आर मेड फ्री इनटू द सॉइल, और इससे हमारी सॉइल की हेल्थ भी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, विच इज अल्टीमेटली इफेक्ट आवर फूड प्रोडक्शन को भी हमारी हेल्प करती है। तो ये हमारे प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो हम ट्रीज के साथ या प्लांट्स के साथ कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने सॉइल की हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकते हैं और कार्बन को सिक्वेस्टर भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर के साथ ट्रीज लगाओ, होम गार्डन्स लगाओ, यहाँ पर क्या मल्टीपर्पज स्पीशीज लगाओ। तो ये तो थी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ trees which can help to reclaimate our degraded soils. तो अल्टीमेटली सिर्फ एनवायरनमेंट ही क्लीन हुआ तो हमारी अपनी हेल्थ भी क्लीन हुई, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन हुआ, और अल्टीमेटली हम we can play a great role by undergoing plantations. जितनी ज्यादा plantations लगाएंगे, we will protect the health of our planet, and ultimately we will help to clean the environment of the pollutants and even help to restore the balance on this planet, as well as restore our own health. Thank you very much. Thank you. Thank you रजनी मैम। Thank you sir. बहुत ही बढ़िया था जी। Thank you sir. जब मैं सुन रहा था तो मेरे को लग रही था कि मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूँ, मैं भूल गया था कि मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूँ। एज ए लेमैन आपको सुन रहा था, और इतना इम्प्रेसिव और इतना सिंपल इफेक्टिव, मतलब दिल करता था मैं आपका लेक्चर कभी कभी आके अटेंड किया करूँ। ओह सर, मैं तो आपकी जूनियर हूँ, मैंने आपका लेक्चर अटेंड करना, आपने थोड़ी करना। ओके मैम, अब मैं थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लूँ। थैंक्स के लिए on behalf of the principal, IQAC staff and students of our college, I record a hearty vote of thanks to Dr. Rajni for the illuminating and thought-provoking lecture. She has discussed the problem of environmental pollution in detail and also set the corrective measures. I'm sure our students will implement her advice and do their bit to clean environment by undertaking more plantation plans. तो जल्दी मैडम, जब बच्चे पूछते हैं जी क्या करें हम कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, मैं उनको दो ही बातें बताता हूँ कि आप कम से कम एक ट्री ग्रो कर दीजिए लाइफ में, और एक अपनी जो व्हीकल्स है वो कम चला लीजिए, जितनी जरूरत है उतनी चला लीजिए, तो इससे ही पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगी। और अगर आप साल में मतलब आप बर्थडे वाले दिन कर सकते हैं, फिर तो मतलब इतने प्लांट्स हो जाएंगे आगे 10 जनरेशन को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम प्लांट्स को ग्रो करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, पता नहीं क्यों, बाकी सारे काम कर लेते हैं। Anyhow, I express my gratitude to our principal, Dr. Uppal, for being a constant source of inspiration, and to Mrs. Shuksham, coordinator IQAC, for her constant motivation. I'm also grateful to the members of organizing committee, Mr. Prashant and Madam Jeshka, for their wholehearted cooperation, and Mr. Jinder Singh for his technical assistance. Last but not the least, my thanks are due to my dear students for participation in this extension lecture. Thanks again to all. Thank you, ma'am.